no more anywhere supporting me. So I was always in looking zone to have something parallel to my profession. I started a career as a lecturer in medical college first. Then I started my regular practice, medical practice. And during practice, then, as I said, I was looking for something, some opportunity. We few friends, we started our manufacturing for ethical drugs, pharmaceutical ethical drugs. But soon I realized this is not a place where I want to be, because if you want to stay in that and make money and career, you have to compromise all the value system available in your family. So that was the last thing I want to lose. And then one fine day I called it off day, meeting all big losses. But I said, no, I'm not going ahead with that. And God listens your inner feeling. आपके दिल की बात ना भगवान तक जाती है. उस समय I was thinking कि मैं क्या करूं, इतना लॉस हो चुका है और मुझे करना भी नहीं है उसके चक्कर में. And then Amway came in my life. Someone approached me. Funniest part is that before I joined this business, around 1.5 years back, someone very successful in his career, dentist by profession, stays in US even now. They are very rich, English people. He had introduced to me, and I said, no, nothing doing. This is not my cup of tea. As usual, people, they say like same, I have said. But next approach when someone did, he was unknown to me, my sponsor, Girish. He was not really known to me, but I knew that he's a doctor, Girish, practicing there in that same lane. And I joined immediately with the one word when he said, Dr. Singh, if you start this building business, within a year or two, you can have a personal, very good financial security for your family. And that is what I wanted to hear, because I was stable with the finances. I was stable with the many more things. I was not really looking for the money. I was looking for something which can support my family in case of anything goes wrong. And that is what clicked me, this is what I am looking for and I want to do it. And once when I jumped into this opportunity, met a lot of official staff leaders, like now Chetna, before Chetna, a lot of people from Amway, and I like their culture, value system, their fundamentals, their fundamental values, founders' principles. They all were very encouraging, कि ऐसा जीवन चाहिए, ऐसा बिजनेस चाहिए जहाँ पे एक संस्कार हो, एक जीने के सही तरीके हो, जहाँ पे सच बोलने के लिए डर नहीं है, सच बोलने के लिए कोई चॉइस रखने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट स्पीक व्हाट यू फील एंड दैट इज राइट. क्योंकि एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में भी देखिए, if you're doing something in your life, career, be in job and professional business, anywhere, and when you come back home late evening, and if you can't share what all these things you did in the whole day out of home to your wife, children, or parents or brothers and sisters, means you are doing something wrong. That is very important. I said, no, this is opportunity where it's an open book. I can share each and every bit of thing, what I do whole throughout the day. In fact, I can involve them. Like my wife, she's very much into my business, full strong supporter. Today, fortunately, she's traveling. Not unfortunately, she's fortunately traveling because she should enjoy life also. That's why we build the business. So my daughter, my wife, Vinita, they all are traveling. So maybe she may join, I don't know, but I've told them around quarter 3, you have to plug in. If she joins, great. Otherwise, you have to bear with me. So this is the opportunity which we started with. And I was serious since day one. Day one, I just grabbed it like something which is I'm looking for, and I don't want to lose it anyway, at any cost. And we started putting down the things which are all required. Like first thing, someone guided me, my mentor. Why you want to build this business? Why you need this business? So of course, one reason was very strong that I had a health issue in the past, which is no more now, but I don't want to take next chance. That was one. Then I said, why still I need this business? Because I said I was stable with the finances. I was stable with the many more things in life. My parents were stable financially. So why I need? Then I realized there is something called dream, which is more than above your routine life and your living and your finances. Because you live for something
what you are aspiring for. So I started cultivating dreams कि हाँ यार, मुझे लगता था कभी कभी, लेकिन मैंने सीरियसली लिया नहीं इसको, मुझे लेना होगा. And then I started dotting down things, dreams. I want to accomplish this, I want to accomplish that, all those many, many good things. And of course, they all were with the materialistic things. Yeah, we need materialistic enhancement in our life. We need materialistic things as a taste of life. So, of course, materialistic. Then, besides that, your emotional things, which you need to have. So, emotional value. And of course, spiritual. And I was spiritually very strong, and I wanted to always be in a strong spiritual system. So these all were my dreams, and which I dotted down. And then fractionalizing. You have to see, dreams are things which you don't have and you want it. You don't have because they are bigger than your reach right now. Maybe financial reach, maybe your activity reach, maybe you have not thought of. So they are big, in short. Now you want it, so you can't have it one day. So what we need to do is fractionalize, break it, छोटे छोटे टुकड़ों में छोड़ दो उसको, and then उस छोटे छोटे ब्लॉक्स को आप कैसे पूरा करोगे, जो कल जाके एक बड़ा आपका ड्रीम का रूप ले लेगा और आप उसको अकम्प्लिश करोगे. तो you have to also understand, if you have a dream, how you want to accomplish, how you can accomplish. So fractionalize. बड़ा सपना उसको तोड़ के छोटा छोटा ब्रेकअप करो, उसको ब्रेकअप फाइनेंस में करो, उसको ब्रेकअप में स्टेप्स में करो, उसको ब्रेकअप उसके वर्क एथिक्स में करो कि अगर मुझे पाने के लिए इतने काम करने हैं तो मैं एक दिन में कितना करूंगा, हफ्तों में कितना करूंगा, महीनों में कितना करूंगा. सो दिस द वे वी स्टार्टेड वर्किंग, एंड इट वाज नॉट ऑल इजी वॉक एंड टॉक. जितना इजी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, अच्छा लगता है, ग्लॉसी लगता है. इट वाज नॉट रियली इजी, बट इट वाज नॉट टफ ईदर. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? प्रोसेस. अक्सर क्या देखा गया है, लोग प्रोसेस में कुछ दूरी के बाद थक जाते हैं, या अपने ड्रीम को फिर बोलते हैं नहीं रहने दो, ठीक है मैं यहाँ पे खुश हूं. नो, देन यू आर नॉट सीरियस विद योर ड्रीम इवन दैट टाइम. यू वेर नेवर. बट अगर आप सचमुच कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो कि नहीं, व्हाट मे कम आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, आई वांट इट मींस आई वांट इट, एंड यू कीप मूविंग ऑन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन कम्स अक्रॉस. कुछ भी सामने आए, कुछ भी आए, आपको चलना ही होगा. और यू नो, व्हाइल वॉकिंग ऑन दिस जर्नी ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ योर ड्रीम, वो छोटे छोटे चीजें ना, वो आपको ज्यादा बॉदर करेंगे. लाइक सैंड इन योर शूज विल मेक इट डिफिकल्ट इन वॉकिंग रादर देन you come across any lion or any elephant in front of you. आपको जिंदगी में कभी सोचा है क्या चीज बॉदर करेगी? वो छोटी छोटी चीज. आपके सैंड शूज में मिट्टी आ गया, पत्थर आ गया छोटा सा, मच्छर ने काटा, कुछ गर्मी ज्यादा हो रही है, आपको ज्यादा बॉदर करेगा. आपके लाइफ में कभी शेर और हाथी आपके सामने नहीं आ जाएंगे जो आपका रास्ता रोकेंगे. तो आपको ये चीज ज्यादा हमेशा बॉदर करेगी, और उस बॉदर उन छोटी चीज को निग्लेक्ट करो और लुक करो, छोड़ दो, क्योंकि उसमें ही उलझ के रह जाओगे तो आगे जाओगे ही नहीं. तो वो सब चीजें आएंगी लाइफ में. हम भी वहां से गुजरे. क्या लोगों ने डिस्करेज नहीं किया? यस, लोगों ने काफी डिस्करेज किया. मैं मेडिकल प्रैक्टिस में थिकली इन्वॉल्व था, मेरी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी थी. वहां क्रिकेट के मैदान में तेंदुलकर सेंचुरी मारते थे, मैं अपने क्लिनिक में मारता था. गुड प्रैक्टिस. मुझे चाय पीने के लिए भी तरसना पड़ता था कि इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है चाय पीने के लिए. सो हेवी प्रैक्टिस के बीच में बिजनेस शुरू किया. अक्सर अभी भी लोग इस बात का बहाना देते मेरा टाइम नहीं है. जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो प्रैक्टिस तो मेरी बहुत अच्छी थी, और फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी मुझे बहुत समय देना पड़ता था. वहां पे भी मैं एज अ डायरेक्टर वाज इन्वॉल्व. तो अब ये सोचिए कि सुबह हम निकलते थे घर से, तो शाम को आज घर आएंगे या कल शाम को आएंगे, ये भी निश्चित नहीं था. क्योंकि कभी कभी फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी में कुछ दौड़ धूप में सडनली प्लान होता है कि लेट्स वी हैव टू गो आउट ऑफ मुंबई. तो घर पे खाली फोन करके बताता था कि मैं बॉम्बे के बाहर यहाँ जा रहा हूँ, कल आऊंगा. यहाँ तक कि बाहर जा रहे हैं तो रास्ते में कपड़े भी खरीद लिए, क्योंकि घर आके कपड़े लेने का भी समय नहीं है. तो उतने थिक टाइम के बीच में हमें अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी. तो प्लीज ये कोई मुझसे कभी ना कहे कि मेरे पास टाइम नहीं तो मैं बिजनेस करता. फिर यानी झूठ बोल रहा है या अपने आप को गुमराह कर रहा है, क्योंकि मैं वहां से गुजरा हूं, मैं जानता हूं. तो इट्स अ रॉन्ग एक्सक्यूज. प्लीज
Sometimes people come across small, अरे I can't talk like you. Yes, even me. आज मुझे आप देख रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट है ये, जो बातें कर रहा है। वो दिन याद करो जब मैं पहली बार किसी से बात कर रहा था, मैं 5 बार पानी पी के फिर बातें कर रहा था, मेरे भी गले सूख रहे थे, मुझे भी हाथ में कंपन आ रही थी सब ग्लास पकड़ने के बाद। ट्रस्ट मी, आई एम ऑनेस्ट, ये सच्चाई है। मैं पहली बार स्टेज पे गया, मुझे एक छोटे पिन 9% के लिए रिकॉग्नाइज किया गया था कि योर 9% कम ऑन स्टेज। तो माइक जब दिया तो माइक मुझे लगता था कि कितने किलो का हो गया, जो होल्ड ही नहीं हो रहा मुझसे, कांप रहा था। तो हुआ है। वॉज इट इजी? नो, क्योंकि हम उस लाइन से, उस कैरेक्टर से आए ही नहीं थे कभी। तो क्लिनिक में क्या होता है, बेचारा पेशेंट रोता गाता आता है तो हम वहां पे बॉस हो जाते हैं, तो जो मैं बोलूंगा वो सुनेगा। बाहर की दुनिया, फार्मा कंपनी में भी हम जिनको मिलते थे, मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स होते थे, मैं डॉक्टर हूँ, जरा अच्छी केमिस्ट्री मैच होती थी। और यहाँ पे तो सभी दुनिया ही अलग थी। तो नथिंग इज इजी इन लाइफ, यू नो। अगर ये चीज इजी होती तो इतनी अच्छी भी नहीं होती। दुनिया में कोई अच्छी चीज और इजी जरा बताइएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कभी। तो आप ये याद रखिए, आपने गॉड गॉड विल बढ़िया अपॉर्चुनिटी को आपने अपने जीवन में लाया है। मैं आप सबको एनकरेज करूंगा कि इसको डीपली अंडरस्टैंड करो। नाउ स्टेप नंबर 1, फर्स्ट गो फॉर ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइडेड बाय एम्बे। गुरुकुल हमारे वेबसाइट पे है, फिर चेतना जी और बहुत सारे हमारे एम्बे के ट्रेनर लीडर्स, दे कीप हेल्पिंग अस, ट्रेनिंग अस कंटिन्यूअसली एवरी डे इन एंड आउट। डोंट मिस इट। उनके हर ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करो, नोट्स बनाओ अपने। आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको उनके माध्यम से क्वेश्चन पूछो, जिससे कि आप क्लियर हो अपने थॉट से। तो फर्स्ट गो फॉर ऑल ट्रेनिंग्स, एवरीथिंग, बी ए प्रोडक्ट, बी ए कॉन्सेप्ट, बी ए रिवॉर्ड्स, अवार्ड, व्हाटएवर यू वांट टू नो, गो फॉर ट्रेनिंग। ब्यूटीफुल ट्रेनिंग्स अवेलेबल। सो ट्रेनिंग के बाद में फिर आप अपने घर में पहले अपने प्रोडक्ट के कस्टमर खुद बनो। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट्स। आपके घर में वो ईमानदारी और वो वफादारी होनी चाहिए जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हो। एमबे के लिए एस्पायर कर रहे हो, एमबे के द्वारा अपने ड्रीम्स के लिए एस्पायर कर रहे हो, तो आपके बिजनेस में, आपके घर में प्रोडक्ट आपके ही होने चाहिए। दूसरा कोई प्रोडक्ट आपके घर में नहीं होना चाहिए। शुरू शुरू में किसी को लगा है कि अरे ये तो ऐसा कह रहे हैं, मैं एकदम सब पैसे ले लूं। नहीं, एकदम मत लीजिए। आप स्टार्ट करिए, धीरे धीरे ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, लेकिन ऐड करने की क्रिया रेगुलर होनी चाहिए। ऐसे नहीं एक बार ले लिया, अभी 6 महीना कुछ नहीं ले रहे हो, ना ऐसा मत करो। अगले महीने फिर और कुछ ऐड करो, फिर ऐड करो, न्यू परचेसेस करते रहो और उसको टेस्ट करो। क्यों? जब आप उन सब चीजों करीब आओगे तो आपका अंदर का कन्विक्शन, जो आप किसी से बात करते हो, वो सामने को जो व्यक्ति आपके होगा उससे वो साउंड करेगा कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है। लेकिन जो चीज आपने कभी देखा नहीं, टच नहीं, फील नहीं किया है और किसी को शेयर करोगे, वो साउंड नहीं करेगा। सो to build your good connectivity and conviction, you must use product. And then now slowly world is polarizing, shifting. हमने जब एमबे बिजनेस शुरू किया था वो मॉडल, उसके बाद बीच में कुछ हमने देखा। अब इस समय देखो, हम लोग हेल्दी वेट, हेल्दी मैनेजमेंट, लिव 360 प्रोग्राम, अभी मॉर्निंग न्यूट्रिशन की बात हो रही थी, चेतना जी और तरुण जी ने बताया। तो इन सब चीजों को पार्टिसिपेट करो। मॉडल चेंज होते रहेंगे क्योंकि चेंज इज इनएविटेबल, ग्रोथ इज ऑप्शनल। तो चेंज को आप रोक नहीं सकते। हम लोग, हमने जब शुरू किया था ये सब बातें तब नहीं होती थी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मार्केट सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, मार्केट के तौर तरीके, रिक्वायरमेंट चेंज होती रही है और उसके अनुसार बिजनेस के मॉडल में हमको कुछ नया नया ऐड करना होगा। तो अब जो लोग कुछ सालों से बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली, जो लोग नए हैं तो उनके लिए ब्यूटीफुल, उनको नया मॉडल मिल गया स्ट्रेट। जो लोग पहले से बिजनेस में कुछ सालों से मेरी तरह हैं, तो आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम अभी भी तरुण जी ने बताया, चेतन जी ने बताया, उसको एकदम ग्रैब कर लो। आप कल देखते देखते समझ नहीं पाओगे कि आपके पास कितना बड़ा एक कंज्यूमर बेस बन गया है। लेकिन जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि आप ट्रेनिंग लीजिए, प्रोडक्ट यूज करिए, तो यहाँ पे भी यू हैव टू बिकम प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। अपने बिजनेस के प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बनिए, यानी पहले आप पर्सोनिफाई करिए। ये वर्ड जरा टेक्निकल है, हम लोगों ने अभी ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम यूज किया, सीखा। हमने कुछ लिव 360 प्रोग्राम अटेंड किए, उसमें सीखे। सो वी लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड गुड समथिंग। आज तक हम पुश मार्केटिंग बिजनेस करते थे। पुश मार्केटिंग यानी लोगों को मिलते थे, बातें करते थे और उनको एनकरेज करते थे कि तुम, मैं कहता हूं ले लो, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं किया, अरे तुम मेरे दोस्त हो यार, इतना मैंने बोल दिया, बात खत्म, ले लो, शुरू करते हैं बिजनेस। नो, नो मोर। एमए डजंट वांट दैट वे।
इवन वी लीडर्स हैव रियलाइज्ड इट्स अ हार्ड थिंग, वी शुड नॉट डू दैट। अब हमें क्या करना है, पुल मार्केटिंग। तो पुल मार्केटिंग तुरंत किसको खींच के लेके आएंगे। पुल मार्केटिंग मीन्स सिंपल वर्ड्स कि जो आप लोगों को प्रमोट करना चाहते हो पहले ऐसे देखो, आप उस लायक बनो, लोग आपको देख के आपसे प्रभावित हो, आपको देख के आप पे विश्वास करना शुरू कर रहे हैं कि यस व्हाट ही इज शोइंग मी और इंटेंडिंग टू गाइड मी। या उनको बताने की जरूरत नहीं है, आज डिजिटल बेस से हमारे पास इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, तमाम चीजें अवेलेबल है, इसके मैं नहीं चाहूंगा। अब अपने आप को पर्सोनिफाई करो, अपना पर्सनालिटी लोगों को सामने बताओ, वो एक्टिविटी बताओ, आप क्या कर रहे हो, ये आपके जीवन में जो सुंदर सुधार आया है, बदलाव आया है, कैसे आया है। तो वो जब लोग आपको देखेंगे, आपके लोग ही देखेंगे, या जो आपको नहीं जानते, डिजिटल वर्ल्ड इज सो फास्ट।